بنیاد رکھی گئی تھی. اس میں دوسری جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا اور اس کو جب اس کی قانون سازی ہوئی تو وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دے دیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کے اس میں ڈومین میں آ گیا ہے اور اسی کے اندر اس کا ایک کمیشن بننا ہے اور اس کی جو مراد ہیں جو آپ نے بات کی لائف انشورنس کی یا آپ نے بات کی جو ٹیررسٹ اٹیکس میں اور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے گا, وہ اس کا حصہ ہے. لیکن کیونکہ اس کا میکینزم ایک موجود نہیں ہے جس کو فوری طور پر اس کو انشور کر کے وہ اس کا حصہ ہوگا. آپ نے بات کی گورنمنٹ کے جو بزنس ہوتا ہے, پیمرا میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے اور اس میں آپ کی کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اور اتھارٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی این ای ہے, پچھلے 12 ماہ میں آئی ٹی این ای نے 10 کروڑ کی ریکوری کر کے سیدھا ڈائریکٹ امپلائیز کو تنخواہیں جو نہیں ملی ہوئی وہ دے دی گئی ہیں. اور یہ بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ جو آئی ٹی این ای کے ذریعے ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8واں ویج بورڈ بھی پچھلی ہماری ہی حکومت میں 18 سال بعد دوبارہ ریوائو ہوا تھا اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو میڈیا ورکر ہیں, جو میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ہیں, اس کو ڈائریکٹ اس کے ثمرات مل سکے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس ملک کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینسرشپ کا وہ عالم تھا کہ آوازیں بند کر دی گئی تھی, قلم توڑ دیے گئے تھے, کیمرے بند کر دیے گئے تھے, تو جو پریس کلب ہوتے ہیں, چاہے وہ لاہور پریس کلب ہو, چاہے وہ اسلام آباد کا پریس کلب ہو, جو بھی پریس کلبس ہیں وہاں کی جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے. کیونکہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو وزارت کی کرسی ہے اس سے زیادہ کرسی یہ نیشنل پریس کلب کی مضبوط کرسی ہوتی ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں جب کہیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا, پارلیمنٹ کے میڈیا کارنرز کو بند کر دیا گیا تھا, پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے آنے کی اجازت نہیں تھی, وہ تمام جو گیلری تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا, تو نیشنل پریس کلب ہماری آواز بنا. اور ہم لوگ بطور پارلیمنٹیرینز بھی اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو پی ایم بی اے کا قانون تھا اس کو ہم نے مل کر اس کالے قانون کا کلا کما کیا اور وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ چیز ہم نے یقینی بنائی. اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل آپ نے بات کی پریس کلب کی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے اس سے جو حکومت وفاقی بجٹ آیا ہے اس کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے, چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو, چاہے وہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے ہو, اور چاہے وہ ای پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے, ڈیجیٹل کانسیپٹ ہے, اس کو انشور کرنے کے لیے پریس کلب کے آلریڈی جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز ہیں ان کے اکوپمنٹس آ گئے ہیں. میں آپ سے وہ دے بھی دوں گی اور وہ تمام جو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے, اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑھتا ہے, آپ لوگوں کے اگر پاس وہ فیسلٹیز موجود ہوں تو آپ مثبت رپورٹنگ اور فیک نیوز کا جو بھی بٹل ہے وہ ایسے طریقے سے دے سکیں. اور جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز کا کانسیپٹ ہے, جس طرح ہم باقی اداروں میں یہ ڈیجیٹل کانسیپٹس لا رہے ہیں, تو پریس کلب میں یہ چیز بہت ضروری ہے. ہمارا اکوپمنٹ آلریڈی بھی اسلام آباد کے لیول پر آ چکا ہے. اسلام آباد کا مطلب میرا خالی اسلام آباد پریس کلب نہیں ہے, بلکہ تمام پریس کلبس کے لیے جن کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی, آپ لوگ بھی اس میں ڈالیں گے تو اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا منیمم جو 32,000 کی ویج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, آلریڈی آئی ٹی این ای اور پیمرا کے لیول کے اوپر سرکولر چلے گئے ہیں کہ جو منیمم ویج ہے پاکستان کی قانون کے مطابق اس وقت اناؤنسمنٹ کے مطابق, تو میڈیا ورکر ہو, ورکنگ جرنلسٹ ہو, اس کی منیمم ویج ریٹ پاکستان میں 32,000 روپے ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر نہ کسی قسم کی رعایت بند کرتی جائے گی, بلکہ اس کو انشور کیا جائے گا اور اس کو مانیٹر بھی کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو منیمم ویج ریٹ جو آپ کا حق ہے, کہ کسی کا احسان نہیں بلکہ آپ لوگوں کا حق ہے جو آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے. ملک کے اندر جو ایک نفرت, انتشار, فساد کی انتہا 9 مئی کو دیکھی گئی, جس کو آپ نے بھی رپورٹ کیا, میڈیا برادری نے بھی رپورٹ کیا, پاکستان کی عوام نے اس کو مسترد کیا. اس کے بعد جو ایک پازیٹیوٹی کی ایک لہر ہے کہ قوم جب اکٹھی ہوتی ہے, اس کا ریزالو اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے مثبت اثرات معیشت کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے, آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا, جو وائلیٹڈ تھا, اور جو ملک لوگ کہتے تھے, یہی لوگ کہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. جب موجودہ اتحادی حکومت آئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف معیشت کی سمت ٹھیک کی گئی, مہنگائی کی صورت میں ایک سال مشکلات پاکستان کی عوام نے
बिल्कुल सही है, लेकिन जो रिजॉल्व है वो महंगाई ख़त्म करने का है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो महंगा तरीन मुल्क सस्ता तरीन करके दिखाया है, डेवलपमेंट लाकर दिखाई है। जो मोटरवेज ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन सड़कें बनाने से, मेट्रोज बनाने से, डेवलपमेंट लाने से, सीपेट लाने से जो मुल्क के अंदर ग्रोथ और रोज़गार और कारोबार के मौके मुयसर होते हैं, ये असल में जो इसके खिलाफ बात करते हैं वो उस रोज़गार के खिलाफ बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मौजूदा बजट में ज़राअत के शोबे में पिछले साल फ्लड्स देखे आपने, उसके बावजूद वो तमाम इंतजाम किए गए कि एक साल के अंदर तारीखी बम्पर क्रॉप्स देखने में आया फ्लड्स के बावजूद। फिर फ्लड्स के बाद जिस तरह मैनेजमेंट की गई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर फील्ड के ऊपर जिस तरह की पेशबंदी की गई, उसके असरात अल्लाह ताला खैर करे। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगी कि आप दुआएं करें कि जो साइक्लोन इस वक्त जो साउथ में हिट करने की जो बार बार पेशेंगोइयाँ हो रही हैं, वो अल्लाह ताला अपना करम करे, अपना रहम करे। लेकिन जिस तरह की इवैक्यूएशन हुई है, ये वही पेशबंदी है जो पिछले साल की गई थी कि अगर इस तरह का कोई भी हादसा होता है या ऐसी कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो उसकी मनसूबाबंदी ऐसी हो कि जानें बचाई जा सकें, ना कि जाने जो है लोग जो है वो उनकी हलाकतें हों या लोग शहीद हों। तो यही वो सारा रिजॉल्व है। उसके बाद आपने देखा कि हर वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आना है, गंदम की प्राइस का नीचे आना है, वीट की प्राइस का नीचे आना है, सारा वक्त वज़ीर आज़म उसका डायरेक्ट रिलीफ कैसे आम आदमी को पहुंचना है उसके अंदर है। फिर आईटी के शोबे में जो लोन स्कीम्स हैं, वो आप लोग जो यंग सहाफ़ी हैं, अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो यूथ लोन स्कीम है उसके अंदर आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। उसके अंदर पूरी आपकी मैकेनिज़्म को वज़ा कर दिया गया है। इसी तरह ज़राअत के शोबे में जो ट्यूबवेल्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए जो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का बजट दिया गया, और खाली बजट नहीं है, खाली पैसे मुख्तस नहीं किए गए, बल्कि वो डायरेक्शन दी गई है कि किस तरह आईटी का सेक्टर, किस तरह एग्रीकल्चर का सेक्टर, किस तरह एक्सपोर्ट का सेक्टर, किस तरह नौजवान को पहली दफ़ा जो यूथ प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, उसको 4 साल तख्ती तो बदल दी, लेकिन उसके 13 में से 8 जो हिस्से थे वो बंद करके रखे, और सिर्फ उसकी तशहीर के ऊपर पैसा खर्च होता रहा, लेकिन नौजवानों को उसका जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल सके। इस बजट और पिछले साल बजट में जितना आईटी रिलेटेड नौजवानों के लिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड और यूथ रिलेटेड जितना बजट था, उसकी डायरेक्शन भी, उसका मैकेनिज्म भी इस बजट के अंदर तय कर दिया गया है, ताकि रिलीफ जो है वो फौरी तौर पर मिल सके। इलेक्शन पे आपका सवाल होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है और यही असल रूह है जमहूरियत की, वो हुकूमत जो है वो सेटअप को देगी। हम इलेक्शन के लिए अगर इस वक्त कोई जमात रेडी है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। आपने देखा होगा शुजाबाद के अंदर बड़ा भरपूर जलसा हुआ, कुड़िया के अंदर, बिहाड़ी के अंदर, लाहौर के अंदर, यही वो इलेक्शन कैंपेन का तसलसल है जो शुरू हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी 3 दिन पहले शुजाबाद में भरपूर जलसा किया, और जो अवाम की सपोर्ट, अवाम का जो रद्द अमल है, और पाकिस्तान की कौम ये फसाद, ये नफरत, ये इंतशार, इस हिजान की कैफियत से थक चुकी है। और मकसद मौजूदा हुकूमत का है कि मुल्क के अंदर एक ऐसी इत्तेहाद का अंसर हो, एक ऐसा अंसर हो कि जो लोगों को, नौजवानों को, पाकिस्तान को जोड़ने की बात करे, तामीर की बात करे। जैसे हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खाली बातें नहीं की, बल्कि अपना विजन भी दिया है और करके दिखाया है, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो दहशतगर्दी का खात्मा हो, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, चाहे वो महंगाई ख़त्म करना हो, चाहे वो रोज़गार देना हो, कारोबार देना हो नौजवान को, बिजनेसमैन के लिए कारोबारी मौके हों। जो 13 से 18 तक का एक सफ़र आपने देखा, इंशाअल्लाह उसकी बुनियाद रखी गई है, उसकी और यही वो तरीका है कि इन तमाम मनसूबों से फ़ायदा भी उठाएगी और इंशाअल्लाह दोबारा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र तय करेगा। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2018 में जब RTS बढ़ाकर एक मुसल्लत किया गया नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट मुल्क के ऊपर वज़ीर आज़म, तो उसके बाद अगले ही महीने से तमाम अपोजिशन जेलों में चली गई, सजाए मौत की चक्कियों में चली गई, उम्र कैद और सजाए मौत की कहानियाँ सुनाई गई और मैसेजेस दिए गए, और फौरी तौर पर सबको करप्शन के केसेस जो इन्हीं के दौर में अदालतों से सुरखरू होकर बेल्स हुई। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई, मकसद पाकिस्तान की आवाम का रिलीफ था,
नौजवान का कारोबार था, नौजवान का रोजगार था, मुल्क में महंगाई कम करना था, और वो दोबारा से जो एक डेवलपमेंट का तासुर था, तो हमने आते ही हम डाल सकते थे। जो रियासती ताकत इमरान खान साहब के पास मौजूद थी, वो मौजूदा हुकूमत के पास भी मौजूद थी, वो नैब भी मौजूद थी। लेकिन अगर हमने इनसे इंतकाम लेना होता तो हम नैब के अंदर कोई रिफॉर्म ना करते, जिससे पाकिस्तान के 4 साल बिजनेस भी तबाह हुआ, मईशत भी तबाह हुई, गवर्नेंस भी तबाह हुई, और इस टूल को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम हुआ। एक पूरा प्रोसेस चला जिसके तहत केसेस बने, उसकी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स के अंदर हुई, ट्रायल्स कोर्ट्स के अंदर हुए, जो ये पेश होने ना जवाब देने की वजह से 9 मई की इंतहा की गई, और 9 मई के वाक़े के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर कहा गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। तो सियासत में क्या है, आप जिसको माइनस करने जा रही हैं कि कासिम के अबू को उसकी गिरफ्तारी कब तक रोके हैं? अच्छा, मैंने कहा जरा मैं पूछ लूँ कि वही साहब है या कोई और साहब। पहली बात तो है कि अगर अपने अमाल ठीक हो तो सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, जिसकी जिंदा मिसाल मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद है। जिनको माइनस करने की, जिनको सियासत से हटाने की बातें मैं बचपन से सुन रही हूँ, लेकिन जब जिसकी बुनियादें और जिसकी जो जड़ें होती हैं वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर हो, जो मसनूई तौर पर मैंडेट्स को चोरी करके आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत ना किया गया हो, तो फिर उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि 2018 से लेकर 2022 तक जो सियासी इंतकाम और माइनस करने की साजिशों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरी है, इनके साथ क्या हुआ है? जो आधा घंटा जेलों में नहीं रह सकते, जो रोना पीटना डाल देते, जो जमातें होती हैं जिनके लीडर बहादुर होते हैं, गीदड़ नहीं होते, वो जमातों को भी कोई माइनस नहीं कर सकता, उन लीडरों को भी कोई माइनस नहीं कर सकता, उस सियासतदान को भी कोई माइनस नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के फजल से मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, और पाकिस्तान के अवाम के पास इलेक्शन का मैंडेट लेकर जाएगी, और अवाम से मैंडेट लेकर इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करेगी। मैडम ये बताइए कि मियां नवाज मेरा तो दिल करता है कि अभी इसी घंटे आ जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जरूरत है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे लीडर की जरूरत है, और ये पाकिस्तान की जरूरत है कि मोहम्मद नवाज शरीफ IMF के प्रोग्राम को इस वक्त हम नेगोशिएट कर रहे हैं, एक सस्पेंडेड प्रोग्राम को, एक वायलेटेड प्रोग्राम को, जिसकी वायलेशन जिन्होंने इन शर्तों पे दस्तखत किए थे उन्होंने ही करनी थी, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया था। हम 2 साल पिछले साल से लेकर इस बजट तक हम उसकी नेगोशिएशन के अंदर हैं, और उनके साथ जो बजट बनता है तो सीट शेयर होती है, और ऐसे नहीं होता कि उसको साइड पे रख दें, उसको कर दें, और जो सियासी जमातें होती हैं जिनका मकसद पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना होता है, वो बजट बनाने को सर से उतारती नहीं है, बल्कि एक एक लाइन जो उसमें लिखती है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, और क्या चीज़ पाकिस्तान के नौजवान, कारोबार तबका, सेक्टर, IT, जैसे मैंने आपको बताया, यूथ प्रोग्राम, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, विमेन जो एम्पावरमेंट है उसका, तो कोई हुकूमत जो होती है वो सर से बजट उतारती नहीं है कभी भी, जो जिम्मेदार होती है। लेकिन हमने 4 साल जरूर देखा कि किस तरह सर से बजट उतार कर मईशत को तबाह कर कर, न किसी सेक्टर की परवाह, न किसी नौजवान की परवाह, न किसी सेगमेंट की परवाह करते हुए बजट बनाए गए, दिए गए IMF प्रोग्राम जो दिया साइन कर दिया, जब चाहा उसको वायलेट कर दिया, जब चाहा उसकी मईशत को तबाह कर दिया, सब्सिडी देकर। तो ये ना इस वक्त हुकूमत का काम है, हमने बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी सोच से एक इकोनॉमिक लेड बजट बनाया है, जिसके तमाम जो चीजें हैं आपके सामने हैं, और उसको बड़ी जिम्मेदारी से किया। अगर वो बाहर जाना चाहें तो आपकी हुकूमत उन्हें सहूलत फराहम करेगी? देखिए, उन्होंने अपने 4 साल के, ये मैं कोई सवाल लेट तो नहीं कर सकती, उन्होंने अपने 4 साल के अमालों का जवाब देना है, और 9 मई का भी जवाब देना है। तो किसी को ना कानून से इस्तिस्ना हासिल है,
क्योंकि इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वज़ीर आज़म ने इन्हीं अदालतों के और इन्हीं कवानीन के सामने पेश होकर ये मिसाल रखी है कि अब मुल्क का आने वाला कोई वज़ीर आज़म किसी कानून से इस्तिस्ना नहीं होगा। किए हुए गुनाह, अपने करने वाले गुनाह, आइंदा सोचे जाने वाले गुनाहों से इस्तिस्ना देती है। तो ये सवाल तो हम लोगों से अच्छा मैडम, ये कोई जगह जज उनकी लाइटें तोड़ी, उनका कोई कैमरा साबित नहीं छोड़ा। ये उस वक्त से ये सिलसिला जारी है, लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग मास्टरमाइंड से लेकर उसकी प्लानिंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन से लेकर उसको एडमिनिस्टर करने तक जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो एविडेंस आ गया है उसके मुताबिक कानून जो है वो उनका इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, ट्रायल भी कर रही है। और उन लोगों को, जिन लोगों ने 9 बार सानिया के अंदर अपना हिस्सा डाला है, उनके साथ कोई रियायत नहीं बची जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ किसी किस्म की कोई जाति भी नहीं होगी। हमारी बहन का बड़ा फन है, इस वक्त पसीने से शराबूर है, शदीद गर्मी में बैठी है। थोड़ा सा आप लोग भी एहसास कर ले, और वो तो इनकार नहीं कर